everyone. Good morning, children. How are you all? I hope you all are good, right? और अभी तो थोड़ी सिचुएशन भी पहले से बेटर है अभी बाहर, बिकॉज अभी इतने सारे केसेस भी नहीं आते. सो मे बी वेरी सुन आपकी स्कूल है वो स्टार्ट हो जाएगी. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके. बिकॉज जब भी स्कूल स्टार्ट हो तो जितना पॉसिबल हो इतना स्कूल मिस ना करें, बिकॉज 10th और 12th तो स्टार्ट हो चुका है. बी सिर्फ 9th और 11th की मे बी स्टार्ट हो जाएगी. सो प्लीज़ प्रिपेयर योर फॉर बुक, होमवर्क बुक जो भी आपकी इनकम्प्लीट हो वो सब प्रिपेयर करो, कंप्लीट करो और रेडी रहना स्कूल ओपन होने के साथ ही. बिकॉज whenever your school will start, mostly your exam will near at that time, right? सो तभी रिवीजन ही होगा क्लास में और आपकी फायर नोट चेकिंग वगैरह सब होगी, बिकॉज इंटरनल मार्क्स जो आपके हैं वो उनके बेसिस पे ही आपको मिलने वाले हैं, राइट. सो मैं आप सबसे बोलती हूँ कि प्लीज़ हर एक सब्जेक्ट की आप जितने भी फायर नोट्स वगैरह है वो सब रेडी रखना और वर्क बुक भी, ओके. सो नाउ we are going to start our fifth lecture of chapter number 2. So we had done the 4 lectures of chapter 2, that is business service 1, right? And first 4 lectures of that chapter, of this chapter, we had learned many things, different types of service, right? Like insurance service, then पोस्टल सर्विस में डिटेल हमारा बाकी है, बट हमने इंश्योरेंस सर्विस अच्छे से स्टडी की है. लाइक टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हमने सीखा था लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड्स 2 insurance, whole life insurance and endowment insurance. And now we all clear about the difference between the whole life insurance and endowment insurance, right? Then general insurance. General insurance includes many different types of insurance like marine insurance, air insurance and rail insurance, which is related to the goods transportation insurance. Then other general insurance includes the health insurance, then insurance against the theft, animal insurance, group insurance, sports insurance, vehicle insurance, third party insurance, credit insurance, insurance of loyalty against fraud, accident insurance, etc. Right? Then there all types of insurance will studied in detail. Then privatization of insurance and Insurance Regulatory and Development Act IRDA. Then postal service. So in last lecture we had done this paragraph of postal service, right? So first we read this paragraph and then we'll start the current topic of today's lecture, that is a general post letters. वहाँ से हमारा पेंडिंग था, तो हम फर्स्ट ये जो पैराग्राफ है जस्ट रीड दिस paragraph and then we'll start the general post letters with detailed explanation. Okay, so are you ready all? Okay, good. You all are read with me, okay? So postal service play an important role in a written information and communication. See, postal service play a very important role, very essential in written information and communication. It is a proof. It can be my proof. It is essential to pass on information from one place to another speedily and without interruption. Right? It is very essential to pass on information from one place to another speedily and without interruption. The same service can be available through a private postal service or Angadiya too. Individual and business unit, the Indian Postal Department has been providing information and communication services for more than 150 years. Postal Department is providing services other than just postal service like money order, acceptance of various forms of deposit through small saving plans, postal life insurance and rural insurance scheme. It also provides other service like investment in mutual funds and service of agent on behalf of Government of India for many a scheme. It also provides service of paying retirement pension.
It has got license to provide banking service and hence it acts as a bank to its customer. There are more than 1,50,000 post office in India. In our India, there are more than 1,50,000 post office, and out of it, almost 90% are set up in rural areas. So it is good. It provides the following types of service like the general post letters, registered post, then parcel service, speed post or express parcel, saving service, recurring deposit, term deposit, national saving certificates, then Kisan Vikas Patra, Public Provident Fund, Postal Insurance, Monthly Scheme, Monthly Income Scheme, then Money Order, other related service. The total 15 types of service provided by the post office. So from that 15, the first one is the general post or letters. Okay. Information and communication can be sent through the postcard, inland, letters, cover, etc. सी कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो हमें किसी को पहुंचानी है, कम्युनिकेट करनी है, तो हम वो पोस्ट कार्ड थ्रू जो सेंड करते हैं दैट इज़ अ जनरल पोस्ट और लेटर्स. ओके. और कोई कवर्स वगैरह भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा पेज, कोई लेटर हेड, वो कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं. दिस ऑल आर इंक्लूड इन जनरल पोस्ट और लेटर. ओके. देन द सेकेंड वन इज द रजिस्टर्ड पोस्ट. Postal Department provides a service of registered post. Such posts are delivered by the Post Department for which the charge are more than the general post communication. If the sender of the post require a proof in form of signature of a receiver, some extra charge will have to be paid. See, registered post है वो compared to the general post little bit chargeable, right? Because पोस्टल डिपार्टमेंट है वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है रजिस्टर्ड पोस्ट की, और इसमें जो चार्जेस होते हैं वो जनरल पोस्ट से थोड़े ज़्यादा होते हैं. एंड अगर सेंडर जो भी है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से पोस्ट करने वाला है, जो सेंड करना चाहता है, अगर ही वांट कि भाई रिसीवर के सिग्नेचर भी उनको एज अ प्रूफ मिले, देन ही वुड पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस. Then parcel service. See, general post and registered post for the कोई डॉक्यूमेंट्स हो, लेटर वगैरह हो तो, बट द पार्सल सर्विस विच इज़ यूज फॉर द प्रोडक्ट. अगर हम कोई चीज़ है जो ये किसी के यहाँ सेंड करना चाहते हैं तो पार्सल सर्विस है वो ज़्यादा यूज़ होती है. सो ऑल प्रोडक्ट अदर देन दोज प्रोहिबिटेड बाय लॉ कैन बी सेंड इन फॉर्म ऑफ पार्सल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे कि अभी एज पर लो कोई चीज़ ऐसी है जो हम पार्सल सर्विस में नहीं सेंड कर सकते हैं, तो उनके सिवाय जो भी प्रोडक्ट हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पार्सल, दैट इज़ पार्सल सर्विस. एंड इफ नीडेड द इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द पार्सल टू, कि भाई अगर ड्यूरिंग द वे कोई जो चीज़ आप सेंड करें वो टूट गई, कुछ हो गया, तो उनके लिए भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं. Booking of the parcel can be done from any post office. Generally, the sender of the parcel pays a fees to the post office. कोई भी पार्सल आप जो सेंड करना चाहते हो कोई भी पोस्ट ऑफिस से आप उनके लिए बुकिंग करवा सकते हो. एंड जनरली सेंडर ही वो पार्सल की फ़ीस जो है, जो चार्जेस है वो पे करता है. कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस पे. सी, वैल्यू पेएबल पोस्ट इम्पेरियल सर्विस VPP इज़ मोर पॉपुलर. ये जो है वैल्यू पेएबल पोस्ट वो ज़्यादा पॉपुलर है. कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो और सेलर हो, ऑन रिसीविंग एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट सेंड अ पार्सल टू द पोस्टल डिपार्टमेंट. जैसे कि हम अभी जो ऑनलाइन कुछ परचेस करते हैं तो वो पार्सल ही आता है ना हमारे घर पे, राइट. इनको रिसीव होता है ऑर्डर हमारा, फिर वो जो प्रोडक्ट है वो पार्सल थ्रू हमें सेंड करता है. एंड receiver of the parcel pays the parcel charges and also the price which is pre-decided so to the postal department, which in turn is passed on to sender. उसमें क्या होता है VPP में कि भाई जो सेंडर है वो प्रोडक्ट सेंड करता है, फिर रिसीवर है वो पार्सल के भी चार्जेस पे करता है
और पार्सल की जो प्रोडक्ट है उनकी भी जो प्री डिसाइडेड रेट है वो पे करता है। एंड वो अमाउंट ये जो बीच में जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो सेंडर को पास आउट करते हैं, राइट। तो दैट इज़ द VPP, वैल्यू पेबल पोस्ट। जो भी हम कुछ प्रोडक्ट है वो COD ऑप्शन पे अमेजोन से कुछ भी परचेज करें तो हम उनको दोनों पे करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस भी पे करते हैं और चार्जेस भी पे करते हैं। तो उसमें से जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो अमेजोन वाले को जो पोस्ट वाले वो पे करते हैं, राइट। सो क्लियर अबाउट द वैल्यू पेबल पोस्ट, इट इज़ वेरी पॉपुलर नाउ। So next one, the speed post or parcel. So speed post is a little bit speedy compared to others. इसमें ना आप जो भी पार्सल्स या पोस्ट करना चाहते हो वो थोड़ा स्पीड में होता है, मीन्स जो नॉर्मल टाइम ड्यूरिंग है उनसे ज़्यादा स्पीड में। अगर आपको कोई इमरजेंसी वगैरह हो तो आप स्पीड पोस्ट करो तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपको कम्युनिकेट करनी वो आप कम टाइम में कर सकते हो। So the postal department guarantees to deliver the post within a stipulated time. इसमें टाइम फिक्स होता है कि भाई विद इन 2 days हो जाएगा, विद इन 3 days, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, राइट, विद इन द प्लेस डिसाइडेड इन इंडिया। अभी तो आउट ऑफ कंट्री भी भेजते बट वो डिफरेंट होता है। एंड इनके जो चार्जेस होते हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट और जनरल पोस्ट से ज़्यादा होता है। सो द चार्जेस आर द हायर फॉर द स्पीड पोस्ट than the general post or registered post, and it can be insured if required. So we have done the 4 types of post, that is general post, registered post, parcel service and speed post. Now the next one is the express parcel. So this service is available for the both individual and business unit, because business में भी express parcel की need होती है और individual को भी. So express parcel is sent very speedily within the prescribed time limit. और पोस्ट डिपार्टमेंट सेंड्स आइदर थ्रू एयर और थ्रू एनी अदर फास्ट रूट, या तो एयर थ्रू और या तो कोई फास्ट रूट हो तो उनके थ्रू ही जो भी पार्सल से वो सेंड होते हैं। एंड दिस द फीस फॉर दिस इज इवन हायर दैन द स्पीड पोस्ट। एक्सप्रेस पार्सल की जो फीस होती है वो स्पीड पोस्ट के कंपेयर में भी ज़्यादा है। क्लियर, गुड। सो जनरल पोस्ट में सबसे कम, देन रजिस्टर्ड पोस्ट में जनरल पोस्ट की कंपेयर में लिटिल बिट हाई, देन स्पीड पोस्ट इज अ हायर charges compared to registered and general, and express parcel charge fees higher than the speed post. So here we done total 5 types of post service: general post, registered post, parcel post, उसमें value payable post, then speed post and express parcel. So now you just read this 5 parcel or post, and then we'll come to the sixth, that is a saving service, will start. So now you have a 2 minutes for read these 5 types of post, and then we'll come to the sixth point, that is saving service. Okay, so your time start now. Read it and try to understand the difference among all the service. थोड़ी स्पीड करना, हाँ। और प्लीज़ आप ये जो मैं टाइम दे रही हूँ बीच में, आप उनको ऐसे फॉरवर्ड करके कट मत कर दो, उनका यूज़ करो और अभी अभी रीड कर लो, ताकि आपको अलग से टाइम ना देना पड़े ये सब्जेक्ट को। जो न्यूज़ चैनल टीवी में देख रहे हो उनसे तो कोई इश्यू ही नहीं, वो तो पूरा लेक्चर देखने वाले हो, और ये जो टाइम मैं दे रही हूँ एक्स्ट्रा आपको बीच में उनका यूटिलाइज भी करके। बट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये सेकंड्स कट मत कर दो, उसी टाइम में रीड करो कंटिन्यू, तो आपको अलग से ओसी नहीं करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, सो डन द 5 पोस्ट सर्विस. Okay, good.
So come to the next point, that is saving service. Postal department, just like a bank, provides a various type of saving schemes like a saving account, 5-year recurring deposit, term deposit, monthly income plan, senior citizen saving certificate, 15 years public provident fund, 5-10 years Kisan Vikas Patra, Sukanya Samruddhi account, etc. See, this type of these all types of saving scheme हमें ये सर्विस प्रोवाइड सेविंग सर्विस प्रोवाइड में होती है थ्रू द पोस्टल डिपार्टमेंट। जैसे कि बैंक कैसे हमें बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक दैट पोस्टल डिपार्टमेंट भी बहुत सारी सर्विस हमें प्रोवाइड करती है जिसमें हम हमारी सेविंग्स अच्छे से रख सकते हैं। टर्म डिपॉजिट, फाइनेंशियल रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब हमें बैंक में भी प्रोवाइड होती है, बट पोस्टल डिपार्टमेंट का काइंड ऑफ गवर्नमेंट सर्विस हुई, तो उसमें भी हमें ये सब सर्विसेज मिलती है। जस्ट लाइक अ बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कैन ऑल्सो बी ओपन फॉर विच द चेकबुक इज गिवन, एंड नाउ देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ एटीएम कार्ड टू। और अभी तो क्या है कि चेकबुक भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं और साथ में एटीएम कार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। सो दैट टोटली लाइक द बैंक सर्विस, राइट? Then recurring deposit. According to this scheme, the account holder has to pay the amount as decided on or before the pre-decided date. जैसे कैसे हम बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट कराए तो भाई मंथली हो, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, जो भी टाइम डिसाइड होता है एट दैट टाइम हमें कुछ अमाउंट है वो पे करनी होती। तो सेम इज इन पोस्ट ऑफिस में है रिकरिंग डिपॉजिट। सो एट द एंड ऑफ द 5 years व्हेन द अकाउंट मैच्योर, सो तो जितने भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने वहाँ पे डिपॉजिट की है वो प्लस उनका इंटरेस्ट आपको अकाउंट मीन जो भी अकाउंट होल्डर है उनको रिसीव्ड होता है। एंड आफ्टर 5 years, अगर आप इफ रिक्वायर द ड्यूरेशन ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 years। नॉर्मली 5 years का टाइम पीरियड होता है कि भाई फर्स्ट 5 years के लिए आपको कंपलसरी डिपॉजिट करना होता है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट 5 years you get your principal amount plus interest amount, and if you want to extend it that time period then you can। so ये टोटली एक बैंक जैसी फैसिलिटी है, राइट? नेक्स्ट वन, टर्म डिपॉजिट। सो द टर्म डिपॉजिट इज लाइक अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। जैसे बैंक में कैसे फिक्स डिपॉजिट होते थे कि भाई 5 years के लिए, 6 year के लिए, 10 years के लिए, जो भी आप डिसाइड करो वो टाइम पीरियड फिक्स होता है एंड कंटिन्यूस आपको इतने ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट वाइज पे करना पड़ता है जो भी आप डिसाइड करो अमाउंट, राइट? एंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन होता है एवरी 3 months को, क्वार्टरली इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेशन होता है और ऐड हो जाता है आपके अमाउंट में ईयरली बेसिस पे। एंड दिस अकाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर, एंड सच अकाउंट कैन बी क्लोज्ड एनी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। और आप अगर मैच्योरिटी पीरियड ना हुआ मीन्स आपने अगर 5 years के लिए वो टर्म डिपॉजिट की है बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years इफ़ यू वांट देन यू कैन क्लोज दैट अकाउंट। ये इसमें अवेलेबल है स्कीम, राइट? सो फर्स्ट हमने की सेविंग सर्विस, देन रिकरिंग डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। टोटली बैंक जैसी ही सर्विस है। अब समझ रहे हैं ना, हम अच्छे से हमारी सेविंग से वहाँ पे रख सकते हैं। फिर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बट बिफोर हम स्टार्ट करें 2.2.9 NSC, बिफोर दैट यू जस्ट रीड दिस 3 सर्विस, saving service, recurring deposit and term deposit. You have 1.5 minutes for this and then we'll come to the national saving certificate. Okay, see बहुत easy है, तो I hope you all understood perfectly and clear about the concept of different type of post service. Okay, good.
ओके, रीडिंग हो गया? Good. So total we have done 8 types of post service. First one, general postal letters, then registered post, then parcel service, then speed post, then express parcel, then saving account service, recurring deposit service, and term deposit. And now the next one is the national saving certificate. Those who want to invest in NSC will have to purchase it from the post office. अगर कोई NSC में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको पोस्ट ऑफिस से वो परचेस करना पड़ता है. एंड उनका ये सेविंग सर्टिफिकेट्स का टाइम पीरियड क्या होता है? तो कि 5 और 10 ईयर्स. एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इज़ गिवन इन एडवांस. पहले से ही उसमें इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड होता है और आपको एटलीस्ट 5 और 10 ईयर्स के लिए उसमें सेविंग्स करना है. और एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 or 10 years, amount can be claimed by fulfilling the required formalities from any post office. फर्स्ट आपको क्या करना है कि पोस्ट ऑफिस में जाना है और उनको परचेज करना पड़ता है एनएससी में इन्वेस्ट करने के लिए. फिर आपने जितने भी ईयर्स 5 ईयर्स और 10 ईयर्स डिसाइड किया है वो ईयर के लिए उतने ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट भी उसमें मिलता है. और 5 और 10 ईयर्स कंप्लीट है उनके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो फॉर्मेलिटीज़ आप फुलफ़िल करो और आपको जो अमाउंट है वो क्लेम हो जाती है और आपको वो रुपीज़ मिल जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. ओके, तो ये थी एक न्यू स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. द नेक्स्ट वन है किसान विकास पत्र. द डिपोजिटर इन किसान विकास पत्र गेट अ डबल द इन्वेस्टेड अमाउंट आफ्टर 100 months, 8 years and 4 months. मीन्स अगर आपने 1 लाख डिपॉजिट किए हैं तो आफ्टर द 8 years यू गेट 2 लाख. ऐसा जितना भी इन्वेस्ट किया है उतना आपको डबल मिलता है, बट 8 years and 4 months तक आपको रखना पड़ेगा. दिस सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ओनली फॉर द प्रिस्क्राइब अमाउंट एंड आफ्टर द मेच्योरिटी डेट द अमाउंट कैन बी क्लेम. इसमें क्या है कि मेच्योरिटी डेट के पहले आप क्लेम नहीं कर सकते, कंपल्सरी आफ्टर द मेच्योरिटी डेट अमाउंट कैन बी क्लेम. और वो भी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्मेलिटीज़ है, वो फुलफिल करो उनके बाद ही. देन है नेक्स्ट वन इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड. सो एनी इंडिविजुअल कैन ओपन एन अकाउंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम. आपको पता है पीपीएफ क्या है? हमें जो प्रोविडेंट फंड, नॉर्मली प्रोविडेंट फंड आपको पता होगा अगर आप अकाउंट्स में पढ़े हैं दैन, कि प्रोविडेंट फंड क्या है. प्रोविडेंट फंड एक ऐसी चीज़ है कि वेन एवर यू स्टार्ट योर जॉब एंड अगर आपको ऐसी कंपनी में जॉब करे कि जहाँ पे प्रोविडेंट फंड का एक्ट है वो अप्लाई होता है, राइट, लेविड होता है, तो वहाँ पे क्या है उनके एम्प्लॉय को वो लोग एक अमाउंट उनके लिए सेविंग एक है करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड. बट ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड कि जो आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई आपका फंड है वो डिपॉजिट हो रहा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो डेट इज़ अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड. एंड एनी इंडिविजुअल कैन ओपन एन अकाउंट इन पीपीएफ स्कीम. कोई भी इंडिविजुअल है वो पीपीएफ में अकाउंट ओपन करवा सकता है. एंड द पीरियड फॉर दिस अकाउंट इज़ अ 15 years. एटलीस्ट आपको 15 years तो रखना ही है. एंड द मिनिमम अमाउंट है 500 पर एनम. आपको एवरी ईयर 500 डिपॉजिट करने हैं फॉर द 15 years. मोर देन 500 आप कर सकते हो बट द मिनिमम अमाउंट इज डिसाइडेड दैट इज 500 पर एनम. एंड आफ्टर द 15 years, under the prevailing rules, the duration of this account can be extended by the 5 years every time. अगर if you want, then after the completion of the 15 years you can extend it that time with for the next 5 years. And then account can be closed before 15 years, cannot be closed before 15 years. इसमें आप 15 years से पहले अकाउंट है वो क्लोज नहीं करवा सकते. मीन्स आपको कंपलसरी 15 years तक वो अकाउंट ओपन भी रखना है और एवरी ईयर आपको अमाउंट डिपॉजिट करनी है. सो the money deposited in this account is exempted from the income tax calculation. This one is one of the best benefit for us कि भाई हम ये जो हमारी इनकम है, हम जो सेविंग्स कर रहे हैं वो हमें इनकम टैक्स कैलकुलेशन में एग्जेम्प्ट मिलती है. मीन्स इनके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता. उल्टा कि हम जितनी इनकम हमारी दिखा रहे हैं उसमें से ये माइनस होके टैक्स आता है, तो हमें ये इतना बेनिफिट दिलवाता है. So PPF is one of the beneficial in income tax calculation.
So in the event of death of account holder, the amount will be given to the nominated head. अगर जो कोई पर्सन जिनका अकाउंट है इसमें अगर उनकी डेथ हो गई देन वो सारी जो अमाउंट है वो उनके लीगल हेड को मिलती है, जिनका नाम उन्होंने एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग जो दिखाया है कि भी ये नॉमिनेशन में उनको मिलती है. सो ये था पब्लिक प्रोविडेंट फंड. व्हाट इज पीपीएफ? सो वन काइंड ऑफ अकाउंट विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द सेविंग योर फंड. और उनका जो फंड है ये आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन में एग्जेम्प्ट भी मिलता है. एग्जेम्प्टेड मीन्स क्या कि आपको उनके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, उल्टा की इनकी वजह से टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि ये है वो उसमें से माइनस हो जाती है. और इनका मेन है कि आपको कंपलसरी 15 ईयर्स तक डिपॉजिट करना है और मिनिमम 500 डिपॉजिट करना है पर एनम. तो ये था पब्लिक प्रोविडेंट फंड. राइट. Now I hope you all clear about what is the National Savings Certificate, Kisan Vikas Patra and Public Provident Fund. So next one is the postal insurance, but before that you just read these three service and then we'll come to the postal insurance, and maybe we'll start from the next lecture, but फर्स्ट यू जस्ट रीड दिस थ्री एंड देन हम सोचते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, उनके ऊपर डिपेंड्स है कि हम पोस्टल इंश्योरेंस करेंगे या नहीं करेंगे. ओके, सो जस्ट यू रीड इट दिस थ्री सी स्कीम और सर्विस एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. प्लीज़ आप याद रखना कि कौन सी स्कीम में कितने ईयर्स. ओके, जैसे NSC में है 5 to 10, किसान विकास पत्र में 100 मंथ्स और 8 years and 4 months. PPF में है 15 years और मिनिमम अमाउंट उसमें तो स्पेसिफाइड है कि 500 तो होनी ही चाहिए. तो ये सब आपको अच्छे से याद करना है. बराबर. प्लीज़ यूटिलाइज दिस टाइम एंड रीड दिस परफेक्टली, बिकॉज अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं. ओके, डन. चलो गुड. अगर आपको ये टाइम कम लग रहा है 1 minute 1.5 minute, then you can pause the video and read completely and then we'll again play. So here we done total 11 postal service, like a general postal letters, second registered post, third parcel service, fourth speed post, fifth express parcel, then saving service, then recurring deposits, term deposit, National Savings Certificate, Kisan Vikas Patra and Public Provident Fund. So total 11 service which is provided by the post office we had done here. And from the next, that is a postal service, will start from the next lecture. So here we done this, and I hope you all understood all this post service and clear about the difference between every clear about the difference among all the postal सर्विस के भी कौन सी पोस्ट सर्विस है वो क्या प्रोवाइड करती है, कितने टाइम्स तक प्रोवाइड करती है, कैसे प्रोवाइड करती है, कितने चार्ज फीस लेती हैं. राइट. ओके, सो in today's homework write a short note on postal service. कोई भी 5 आपको लिखनी है. ये 11 में से कोई भी 5 पोस्ट सर्विस आपको लिखनी है. और नेक्स्ट वीक का होमवर्क मैं बोल ही देती हूँ कि भाई नेक्स्ट 5 आएगी तो अभी बेटर है कि आप लाइन में ही लिखो. तो फर्स्ट 5 आपको आज होमवर्क में रिटर्न करनी है. ओके. एंड ये जो पैराग्राफ है पोस्टल सर्विस का, उसमें से कोई 4 to 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से निकाल के लिखने हैं. ओके, सो आपने होमवर्क नोट डाउन कर लिया. ओके, so here we done finally. Okay, goodbye everyone.